Hello. Hello, good morning. Good morning. How are you? All I am good, sir. What about you? I'm very well, thank you. I can't see you. It's good. Okay, looking very smart today. Due to sunlight, sir. Due to sunlight. Very good. Yeah. You are taking sunlight Hmm. along Sunbath, sir. with reading. Yes, sir. But unfortunately, I can't take sunbath here because my room is inside. Okay. Okay. Let's start. Okay. So start. They are going to school. Are they going to school? Why are they not go to school? अरे don't कहाँ से आ जाएगा इसमें? नहीं. Why are they not go to school? Going आएगा. Or aren't. Yeah. Why aren't? Okay. Why are they not? No. Why aren't they going to school? Okay. He is swimming. Why is he swimming? You driving a car today? You are. So question है ना? क्या? Are you driving a car today? It's okay. Are you coming with your car? With नहीं. By. When are they start the driving? When? When are they starting the driving? She is flying a kite. Is she know the kite flying? Does she know? Does she know? Kite flying it is okay. How to fly a kite? Yeah, flying a kite. Okay, flying a kite. He is playing a football. Is he playing football? He is not play football. He play cricket. He doesn't play bolo. He doesn't play football. He play cricket. Plays. When is he going to start playing cricket? He is selling book. Is she selling book? She is not selling देखो book. या तो is she selling a book बोलो या books बोलो. Is she is not selling books. She is selling newspapers. She is cooking food. She is. Sita is cooking food.
Sita is not cooking food, she is doing domestic work in kitchen. When is she going to start cooking? Is Sita cooking non-veg today? They are watching TV. Are they watching cricket today? They are not watching cricket, they are playing PUBG from morning. They are playing. अब देखो सुबह से हाँ PUBG खेल रहे हैं सर. हाँ तो they have been playing. They have been playing PUBG since morning. Any doubt? हाँ सर डिफरेंस क्या हुआ क्यों देखो have been क्यों आया आर क्यों नहीं आया जब टाइम आएगा समय सुबह से रात से 2 घंटे से 4 दिन से 4 साल से बहुत समय से तो जब भी समय आएगा और कंटिन्यूअस होगा सेंटेंस that should be made in present perfect continuous past perfect continuous past में तो past perfect continuous present में तो present perfect continuous जैसे we are going to learn it today जैसे मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ आई एम ए टीचर लेकिन मैंने अगर बोल दिया मैं 25 साल से टीचर हूँ तो फिर बनेगा आई हैव बीन अ टीचर फॉर 25 ईयर्स क्लियर हो गया मैं लिख देता हूँ आई एम अ टीचर दिस इज सिंपल मैं एक टीचर हूँ अरे कहाँ है आई एम अ टीचर अब मैंने कहा मैं 25 साल से टीचर हूँ आई हैव बीन अ टीचर फॉर 25 years ये होगा इसका तो हिंदी में तो ऐसा हो ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ कहाँ पढ़ा रहा हूँ कहाँ लिखा है इसमें पढ़ा रहा हूँ मैं टीचर हूँ आई हैव बीन अ टीचर फॉर 25 years हाँ मैं 25 साल से टीचर हूँ ये मतलब है इसका पढ़ा कहाँ रहा हूँ टीचर हूँ अब पढ़ा वाला ही नहीं रहा हूँ अच्छा जैसे सरकारी स्कूल में लोग करते हैं they don't teach but they have been teacher singers also I love like me Alka Yagnik I love Sonu Nigam I love Avijit also because I like his some of the songs sometime I like Shreya Ghoshal also and some good singers are there I like them I listen their songs I like Kumar Sanu like ghazal also yes I like ghazals Jagjit Singh Ghulam Ali Pankaj Udas I don't like much because he sings always sharab 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 I don't like it only sharab he has nothing means except sharab he's only singing on sharab only he's supporting government no? That's why maybe but he's a good singer I don't say that but I don't like his ghazals he sings only on sharab so you are not liking but someone is liking not due to sharab yeah I'm talking about myself I don't listen to Pankaj Udas but some of the ghazals of Pankaj Udas are nice which are not on sharab like Chitti Aayi correct this is his best song I think yeah so when are you singing a song crow is sitting on the bench branch crow
crow is sitting on the branch. Hmm. Is crow sitting on the branch? Not. It doesn't crow. He is sparrow. He doesn't नहीं. He is not a crow. Okay. He is not a crow. और He is he not की a जगह crow. instead of he you should use it is. It is not a crow. It is a sparrow. Okay. It does नहीं आएगा सर. नहीं. वो कुछ कर थोड़ी रहा है. It is not crow. वो He is नहीं है. sparrow. वो करता नहीं है, ऐसा थोड़ी है. वो है. वो है. मोहन. आप मोहन is आप रविंद्र बिष्ट हैं. तो you do थोड़ी बोलेंगे. You do रविंद्र. You are रविंद्र. ये पेन है. It is pen. It is a pen. It does pen थोड़ी बोलेंगे. Mohan is writing a letter. Is Mohan writing a letter? Mohan is not writing a letter. He is reading the novel. When is Mohan reading the novel? He is running on the ground. Is he running on the ground? He is not running on the ground. From what time he is running on the ground? अब देखो, अब इसमें वही चीज आएगी. कब से दौड़ रहा है? वो कब से दौड़ रहा है ग्राउंड में, है ना? तो अब इसमें टाइम आ रहा है, ठीक है ना? तो इसमें क्या करेंगे? फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रनिंग इन द ग्राउंड. फॉर है ये एक्चुअली. Okay. For how long has he been running in the ground? कब से दौड़ रहा है? How long he भी है ना सर? Has he? क्वेश्चन है ना? हाँ. तो how long has he been running in the ground? कब से दौड़ रहा है? मैं आपसे पूछूं, आप दिल्ली में कब से हैं? For how long have you been in Delhi? Okay. For आता है तो from आता है. For. Okay. And ये have आएगा, मतलब वही has आएगा सिंगल के लिए और have आएगा पीरियड के लिए, करेक्ट? Okay. Okay. For how long has he running on the ground? For how long has he been? Okay, has he been? Okay. For how long has he been running on the ground? The boys are playing the football match. The boys are not playing the football match. Are they playing the football matches? Are you coming to Almora? I am not coming to Almora. I am not coming to Almora due to leave problem. Due to? Leave problem. Leave छुट्टी. अच्छा, तो अब ड्यू टू लीव प्रॉब्लम में क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये. लीव की कैसी प्रॉब्लम? तो थोड़ा और क्लियर हो जाए तो उसको एक नए सेंटेंस से बना सकते हो. आई एम नॉट कमिंग टू अल्मोड़ा बिकॉज मुझे छुट्टी नहीं मिली है. हाँ, नहीं मिल रही है. आई एम नॉट गेटिंग द लीव. है ना? सिंपल. तो आगे पूरा क्लियर हो गया आप क्या कहना चाह रहे हैं. तो कनेक्ट कर दो, नया बना दो सेंटेंस. They are not waiting the train.
They are not waiting for train. हाँ, फॉर यूज करते हैं हमेशा वेट के साथ. They are waiting for train. Are they waiting for train? अब फॉर ट्रेन आर्टिकल की जरूरत है वहाँ. फॉर अ ट्रेन या फॉर द ट्रेन कोई भी आ जाए उसमें बैठ जाएंगे, या कोई पर्टिकुलर ही उनको चाहिए, पंजाब मेल चाहिए या कोई और चाहिए, तो दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन. ओके. क्योंकि कोई पर्टिकुलर ट्रेन में ही बैठेंगे वो. ये नहीं कि जाना है उनको कलकत्ता बैठ जाएंगे दिल्ली में. नहीं सर, अगर मान लो मेट्रो है तब क्या होता है? अगर सर मानो मेट्रो है देन और ट्रेन, तब भी फॉर द ट्रेन. कोई पर्टिकुलर ट्रेन के लिए ही तो इंतजार कर रहे हैं. ओके. लेकिन सर वो ट्रेन तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही आती है ना, एक ही ट्रेन आती है. तो वहीं तो खड़े हैं, वहीं तो इंतजार कर रहे हैं. ओके. अपने घर पे थोड़ी खड़े हैं, घर के बाहर स्टेशन पे ही खड़े हैं. तो अंडरस्टूड है भाई, इंतजार कर रहे हैं. 4 नंबर की ट्रेन आएगी तो 4 में बैठना उनको, तो 4 का इंतजार कर रहे हैं. दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन. ओके. अब ये आई एम वेटिंग, अब जैसे आई एम वेटिंग फॉर एन ऑटो, तब तो कोई भी ऑटो मिल जाए उसमें बैठ के उसको चांदनी चौक ले जाएंगे. चल भैया चांदनी चौक, तो वहां तो कोई भी चला जाएगा चांदनी चौक. लेकिन ट्रेन तो जहाँ जाएगी वहीं जाएगी, तो पर्टिकुलर ही चाहिए. You have any idea when train is coming? कमिंग नहीं, अराइविंग. गलती नहीं होना चाहिए. एक बार आ गया समझ अराइव, तो अराइव ही आना चाहिए. सेंटेंस क्या है? डू यू हैव any idea when the train arriving? when the train is arriving. ट्रेन इज अराइविंग ना, इज आ एन हो जाएगा ना इसमें. तो क्या इज अराइविंग. हाँ. Is he not? Okay. Is he not the school pune? मीन ये स्कूल का प्यून नहीं है. क्या ये स्कूल का प्यून नहीं है? हाँ, तो क्या बोला आपने? Is he not the school pune? हाँ, isn't he. चेयर ऊपर कर लो आप, जस्ट टेक इट अप. हाँ, अब सही लग रहा, अब स्मार्ट लग रहा. Are you not going to the school today? Is he not writing a letter? Why are you not? Why are you going to there? To नहीं, why are you going there? You are in room. What are you doing in room? Are you okay? Are you in room? I am not in room. Why is Mohan not writing a letter? Where is Crow sitting on the bench? Why isn't he writing a letter? यही था ना. वो क्यों नहीं लिख रहा? Why isn't he writing a letter? क्यों नहीं लिख रहा है? Because he doesn't like to write a letter. He likes to send emails. Where is Crow sitting on the bench? Suresh is going to Rajkot. Suresh is not going to Rajkot. Is Suresh going to Rajkot?
Gaurav is arriving in airport. Hmm. Is Gaurav arriving in the airport? Hmm. Gaurav is not arriving in airport. He is arriving in railway station. Hmm. When is he arriving? Hmm. Rahul father is driving a car. Hmm. Rahul father isn't drive a car. Driving. Or isn't driving a car. Hmm. You are going. You are doing a good work. Hmm. Are you doing a work? Hmm. You are not doing a good work. Hmm. That's it, sir. Okay. Okay, so let's start. Present perfect. We use that formula. Object, sorry, subject. This is not object. Subject has, have, and we always use third form of the verb. और इसका मीनिंग क्या होता है? वेयर वी यूज इट, जहाँ कोई काम हो चुका है. जैसे मैंने खाना खा लिया है, वो चला गया है, बारिश हो चुकी है, गया है, गई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गए हैं. ठीक है ना? We use it. For singular we use has. For plural subject we use have. जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है. How would you say? I have completed my food. Completed or finished. खा लिया है, कंप्लीट नहीं किया है. मैंने खाना खा लिया है. आई हैव तो थर्ड फॉर्म लगाओ ना. I have been. आई हैव बीन ईट. बीन का बताया मैंने, बीन बताया है क्या? I have eat. थर्ड फॉर्म Eaten. क्या बना? I have eaten. What? Food. I have eaten food. I have eaten my food. I have eaten my food. लेकिन इससे और अच्छा बना है. ईटन इतना अच्छा नहीं लगता. खा लिया है. टेकन भी लिख सकते हो. आई हैव टेकन माय फूड, आई हैव टेकन माय लंच. या देखो, जब किसी को खाने के लिए हम बोलते हैं, घर में कोई आपके आया एंड यू ऑफर अ कप ऑफ टी, तो आप बोलते हो प्लीज चाय लीजिए. आप ऐसे नहीं बोलते चाय पी लो. चाय पी लो. आप क्या बोलते? चाय लीजिए. तो हम बोलते हैं टी प्लीज. हैव का मतलब खा लो, पी लो. प्लीज हैव टी या हैव टी प्लीज. लेकिन सर अभी तो हमने बोला ना कि हैव का मतलब जब काम हो चुका होता है. वो अलग है यार, वर्ब भी होती है हैव. Okay. वो हेल्पिंग वर्ब है. हैव का मतलब वर्ब भी होता है. Okay. हैव का मतलब रखना भी होता है, खाना भी होता है.
Okay. मेरे पास है वो भी होता है। वो हेल्पिंग वर्ब है जो यूज होगी परफेक्ट में, लेकिन हैव का मतलब खाने पीने के लिए भी होता है। प्लीज हैव अ समोसा। किसी के घर गए, उसने कहा अरे एक समोसा तो लो यार, प्लीज हैव अ समोसा। तो वो जो ऊपर वाले में कैसे यूज करेंगे? आई हैव ईटन माय फूड, आई हैव माय फूड। हैव तो एक है ही है, और एक है और चाहिए। हाँ, तो फिर कैसे बनेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नो आइडिया। आई हैव, थर्ड फॉर्म भी चाहिए हैव की। हाँ, तो क्या हो जाएगा? हेवन हो जाएगा। हेवन नहीं होता, हेड होता है। हैव हैड माय फूड। हाँ, तो ये बन जाएगा आई हैव हैड माय फूड जस्ट नाउ। अब कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जिनको नहीं आती अंग्रेजी। अरे यार हैव भी लगा दिया इसमें, हैड भी लगा दिया। लेट देम बी कंफ्यूज्ड, उनको होने दो। आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग, आई हैव हैड माय फूड। क्योंकि पास्ट में भी बनेगा ना तो हैड दो बार आ जाएगा। फिर हो जाएगा आई हैड हैड। अच्छा, लोग कहेंगे यार मिस प्रिंट हो गया ये किताब में। मिस प्रिंट हाँ, गलत टाइप हो गया। तो ये आई हैव हैड माय फूड जस्ट नाउ, मैंने अभी खाना खाया है। आई हैव हैड। अब आपने खाना खा लिया क्या? हैव यू हैड फूड? क्वेश्चन बन गया, आपने खाना खा लिया? हैव यू हैड फूड? नो आई हैवंट हैड फूड। तो नेगेटिव बन गया, मैंने नहीं खाया अभी, आई हैवंट हैड। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में जब कभी आता मैंने अभी नहीं किया है, या अभी बच्चे क्लास में नहीं आए हैं, अभी टीचर ने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, तो कोई काम शुरू नहीं हुआ अभी या नहीं हुआ है ना, तो उसमें येट लगाना पड़ता लास्ट में नेगेटिव में। जैसे मैंने अभी खाना नहीं खाया है, आई हैवंट हैड माय फूड येट। येट लगाना पड़ता है। ये भी एक नई चीज आप सीख गए इसमें। एक वो भी होता टी येट, अभी तक। वो सब बाद में पढ़ेंगे, पास्ट में, अभी नहीं। ओके। आई हैवंट हैड माय फूड येट। बच्चे अभी तक क्लास में नहीं आए। कैसे बन? स्टूडेंट हैवंट, सॉरी, स्टूडेंट हैवंट हैड। हैड का को लगेगा इसमें, खा रहे हैं क्या कुछ बच्चे? एक मोड में चले गए तो दूसरे मोड में आने में टाइम लगता है। घुस गए उसमें तो घुस ही गए, निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब हेड क्यों चाहिए? दूसरा वर्ब चाहिए जो वहाँ यूज होना है। हाँ हाँ, कम इन स्कूल येट। हाँ क्या हुआ? The boys haven't reached भी तो हो सकता था, reached school yet। हाँ कह सकते, या आए नहीं है तो कम भी कह सकते हो, पहुंचे नहीं है, आए नहीं है। पहुंचे वाला वो बोलेगा जो उनसे दूर है, जो स्कूल में नहीं है। और स्कूल में जो है वो जी कहेगा अभी नहीं आए।
और जो दूर है Okay. स्कूल के बाहर वो कहेंगे अभी पहुंचे नहीं है. The children haven't reached the school yet. और जो स्कूल में है वो टीचर्स कहेंगे अपने प्रिंसिपल सर बच्चे ही नहीं आया, हम कहाँ से पढ़ाए. Children haven't arrived yet. ये arrived छोड़ दो, कम लगा लो. Children hadn't come yet. How can we teach them? हम कैसे पढ़ाएं? How can we teach them? What should I do? हाँ, what should I do? या Please what? call to their parents. Please call. Call. या अब ये ऑर्डर हो जाएगा. आप प्रिंसिपल से ये नहीं कह सकते आप बहुत सारे टीचर व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें सर, व्हाट कैन वी डू. नो प्रिंसिपल बोल रहा ना. क्या? What should I do? हाँ, प्रिंसिपल बोल रहा व्हाट शुड आई डू. हाँ ठीक है. हाँ, तो अब आप उनसे कहोगे कि हाँ, तो अब वहां पे आप ऑर्डर नहीं दे सकते ना प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल बोल रहा है ना बाकियों को कि प्लीज कॉल टू देयर पेरेंट्स. प्रिंसिपल काम था ना कॉल करना. अच्छा नहीं, आप प्रिंसिपल ने कहा व्हाट कैन आई डू, व्हाट शुड आई डू, तब टीचर्स बोलेंगे सर कि वो उनको बुला लिया जाए. हाँ, सो प्लीज या कैन में करे आएगा या कुड वी कॉल हिम. हाँ, ये भी कह सकते हो. या आप उनसे कहेंगे कि सर पेरेंट्स को बुला लिया जाए, या बुला लेते हैं सर, या बुलाना चाहिए. तो हमको ये कहना चाहिए वी शुड कॉल द पेरेंट्स हियर. वी शुड कॉल पेरेंट्स हियर. हमको पेरेंट्स को बुलाना चाहिए. वी शुड कॉल द पेरेंट्स. और हमें उनसे बात करना चाहिए. वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेम और वी शुड टॉक टू देम. वी शुड टॉक टू देम. लेट अस टॉक टू देम. लेट अस टॉक टू देम, हमें उनसे बात करने दीजिए. तो लेट अस मतलब यूज कर लेते हैं, ऐसा करें ऐसा करें, प्रपोजल होता है. लेट्स गो टू मूवी, लेट्स टॉक टू देम, चलो उनसे बात करते हैं. लेट मी नो. लेट मी नो, ये भी पढ़ेंगे लेट वगैरह. ठीक है. तो ये इस तरीके से होता है. लेकिन कोई एफर्मेटिव है प्रेजेंट परफेक्ट में तो सो फॉर यूज कर लेते हैं. अच्छा. अब आपको इसमें कहना अब नेगेटिव नहीं है सर अभी तो 15 ही बच्चे आए हैं. सर राइट नाउ ओनली 15 स्टूडेंट्स आर देयर. हियर. ये तो सही है लेकिन परफेक्ट में बनाना है आए हैं. ओनली only 15 students in the school. अरे हैव से बनाओ ना, हैव कम. Okay. Only 15 students have in school. हैव कम सो फार. Come so far. Okay. तो सो फार एफर्मेटिव में करोगे. Don't have come so far. अभी तक 15 आए हैं. अभी तक कोई नहीं आया तो येट आ जाएगा. और आए कुछ आ गए तो अभी तक कितने आए. So far. 15 स्टूडेंट्स हैव कम सो फार. अब तक सर 15 आ गए. अभी तो कोई नहीं आया सर. No student has come. No student. No student has come yet. अभी तक कोई नहीं आया. Yeah.
क्लियर। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक कि मतलब सो फार इसमें यूज़ करते हैं, येट यूज़ करते हैं। कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में, जैसे हम बोलते यह पत्र मुझे कल ही मिला है, तो देखने में तो ये लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए। क्या बोलोगे? This letter we have just received. बोला सही, लेकिन लेटर बाद में बोलो ना। वी हैव रिसीव्ड दिस लेटर कल। We received this letter yesterday. देखने में जो लग रहा है वैसे तो आपने सही बनाया है, पर ये गलत है। हिंदी में तो बोल देते हम कल ही मिला है सर, लेकिन इंग्लिश में तो पास्ट में ही बोलना पड़ेगा। Yesterday I have received this letter. पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट में नहीं। हैव से नहीं बनेगा, वही तो समझा रहा हूँ। आई हैव रिसीव्ड दिस लेटर यस्टरडे गलत है, हिंदी में तो बोल देते हैं कि कल ही मिला है, तो बनेगा पास्ट में। आई गॉट दिस लेटर यस्टरडे, आई रिसीव्ड दिस लेटर यस्टरडे। तो पास्ट का पास्ट अभी पढ़ेंगे अपन। क्लियर हो गया? एक और इसमें यूज करते हैं आप कई बार, जैसे आप बोलते हो कि तुम पागल हो गए। Are you mad? पागल हो, पागल हो गए हो, पागल हो डिफरेंस है। आर यू मैड? Have you met? हाँ, तो हैव यू गॉन? Gone. Yes. इसमें क्या बोलते हो आप? हैव यू गॉन मैड? अरे यार कहाँ चला जाता है? हैव यू गॉन मैड? पागल हो गए हो क्या? हैव यू गॉन मैड? Have you gone mad? अच्छा, कंटिन्यूअस में होता है ये, पागल हो रहे हो क्या? Are you going to mad? टू नहीं, आर यू गोइंग मैड? वाई आर यू गोइंग मैड? पागल क्यों हो रहे हो भाई? वाई आर यू सो क्रेजी? हैव पेशेंस, कूल डाउन। कई बार कहते हैं ना, पागल क्यों बन रहा है भाई, थोड़ा सब्र कर ले। प्लीज हैव पेशेंस। हैव पेशेंस मतलब धैर्य रख ले थोड़ा। कई बार अपन ऐसे इस तरह के बोल देते हैं कि पागल क्यों बजा रहा है यार गाड़ी में चढ़ने के लिए, जरा धैर्य रख ले और लोगों को चढ़ लेने दे पहले, फिर चढ़ लियो गाड़ी में। Why are you going mad? Why are you going mad to board the train? Board the train. Wait for people. Wait for others to board. Board. दूसरों के लिए तो कर इंतजार, वो चढ़ जाए। Let them board. Let them board or let them down first. हाँ, let them come down. Come down. उनको बाहर आने दे, उनको चढ़ जाने दे। Let them board और wait for them to board। ये भी कह सकते हो, wait for them to board। Board. इंतजार तो कर ले उनके चढ़ने का। आउटबोर्ड भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो कम डाउन या गेट डाउन। चढ़ने के लिए आप बोलते हो बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड द प्लेन, लेकिन कार में चढ़ने के लिए बोर्ड नहीं बोलते। गेट इनटू द कार, गेट आउट द कार, गेट आउट ऑफ द कार। सर 1 minute, my laptop charger is going to
इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना, परफेक्ट में। तो ये डेली सिचुएशन में आप कोशिश करिए इंग्लिश बोलने की, तो बोलने लगोगे आप। लाइक मीन्स जैसे अभी था अपन ने यूज किया, वाई आर यू गोइंग क्रेजी, Why are you going crazy? Why are you going Be crazy? patient. Be patient बोलोगे आप तो। Be patient. Be patient. Be patient बोलोगे। Be patient मतलब धैर्यवान बनो। Patient मतलब patience होता है। Patient. Patient हो गया एडजेक्टिव, हाँ। और patience हो गया नाउन। Okay. पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान, और पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। तो धैर्य रखो, तो वर्ब लगानी पड़ेगी हैव पेशेंस। और ये खुद अपने आप में एडजेक्टिव है, धैर्यवान, तो धैर्यवान बनो। बी पेशेंट, हैव पेशेंस। Be patient, have patience. ठीक है ना। और पेशेंट मरीज भी होता है, हाँ। लेकिन आ लगा दोगे तो मरीज हो जाएगा। मैंने कहा बी पेशेंट, धैर्यवान बनो, तो मैं लिख दूं बी अ पेशेंट। हाँ, तो बीमार। बी ए पेशेंट, तो जगह मरीज बनो, एक मरीज, तो ये नाउन हो गया। बी ए पेशेंट, एक मरीज बनो। बी पेशेंट, धैर्यवान बनो। अब इसको अपन अगर ऐसे कर दो, Don't be a patient. तो सही बन गया, मरीज मत बनो। डोंट बी ए पेशेंट, मरीज मत बनो। बी एन हेल्दी मैन। Eat good food. Don't be a patient. Have healthy food every day. Don't be a patient. Be patient in eating. Don't be a patient. अब देखो कितना अच्छा सेंटेंस बन गया। Don't be a patient. Don't be a patient. Be patient in eating। देखो मुझे ही कितना बढ़िया आइडिया आ गया ये सेंटेंस लिखने का। अब इसका बहुत से लोग मतलब नहीं समझ पाएंगे। इस सेंटेंस को पूछना अपने कलीग से, यार ये एक सेंटेंस मिला, इसका अर्थ बता। जो बहुत ज्यादा अंग्रेजी जानता हो उससे पूछना, या समझता हो कि मुझे बहुत आती है, उससे पूछना। डोंट बी अ पेशेंट, बी पेशेंट इन ईटिंग। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका हुआ कि सर खाने के लिए सब्र करो, मरीज मत बनो। हाँ, मरीज मत बनो, खाने में धैर्य रखो। कितना प्यारा सेंटेंस बन गया है। हाँ, बोलते भी हम लोग यूज करते हैं। मजा आ गया, लेकिन इस सेंटेंस में मुझे तो आ गया, तुम्हें आया कि नहीं आया? बन गया अचानक। अब इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। एक टॉपिक मिल गया मेरे को। Don't be a patient, be patient in eating. कितना सुंदर है, शब्दों का हेर फेर है, देखो बस। नहीं तो ये दिस इज दी
क्वालिटी ऑफ दैट लैंग्वेज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन पढ़ेंगे आगे, जिसमें बड़ा you will feel interested to learn all these things. These are very interesting. कि शब्द को इधर रख दिया तो कुछ और अर्थ हो गया, इधर रख दिया तो कुछ और हो गया। जैसे कई बार उधर हार्डली यूज करते हैं ना, आई लुक एट हिम हार्डली, एक तो ये हो गया। अब हम ऐसे लिख दें आई हार्डली लुक्ड एट हिम। अब इनका क्या मतलब हो गया? वो लुक्ड है ऊपर वाला एक्चुअली, इसको मैं सही कर देता हूँ, पास्ट में है ना वो। आई लुक्ड एट हिम हार्डली, आई हार्डली लुक्ड एट हिम। अब हार्डली चेंज किया, अर्थ बदल गया पूरा। क्या हो गया? आई लुक्ड एट हिम हार्डली, मैं से देखो, हार्डली मतलब आई वॉज एंग्री और समथिंग, कि गुस्सा था मैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा ऐसे घूर के देखा। हार्डली, आई लुक्ड एट हिम हार्डली। और एक है आई हार्डली लुक्ड एट हिम। कभी देख लिया। हाँ, यस, वेरी गुड। मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने पूछा डिड यू सी हिम इन द पार्टी, आई हार्डली लुक्ड एट हिम। मैं देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया मेरा। तो कितना चेंज आ जाता है, आपने देखा? तो ये मास्टरी चाहिए अपने को, आ जाएगी। What do you think? It will take time. No problem. It will take time, but you will reach your destination. You will reach. You will क्या बोला मैंने? You will reach. हाँ, you will short form. You will reach your destination. पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। हाँ, you will reach your destination। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस जब आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे ना, अपने आप निकलेंगे, इंग्लिश बोलना चालू कर दो। तुम्हारा बॉस भी कहेगा यार तू ही बॉस बन जा यार, मैं तेरी जगह है। हाँ, प्लीज बिकम माय बॉस, वो बोलेगा प्लीज बिकम माय बॉस, एंड आई वांट टू बिकम योर सबऑर्डिनेट। I want to become your subordinate and please you become my boss। तो तुम पूछोगे सर मैं क्यों बन जाऊं आपका बॉस? Why I am? शुड का यूज, फिर वही बन जाऊं, कर जाऊं, जाऊं, आऊं। Why should I? हाँ, why should I become? Why should I become your boss? मैं क्यों बन जाऊं? भैया तुमने अंग्रेजी जो सीख ली, कैसे बोलोगे भैया? तो why should I became your boss? became नहीं, become। become you। ना फिर से बोलो, मैं तुम्हारा बॉस क्यों बन जाऊं? Why should I became your boss? became नहीं, फर्स्ट फॉर्म बी। अरे became नहीं भाई साहब, become। Why should I become your boss? हाँ, उसने कहा क्योंकि तुमने अंग्रेजी सीख ली। Because you should learn। अब शुड कहाँ से आ गया? चेंज करा करो मूड को तुरंत, सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से। यानी कि शुड घुस गया तो सब में शुड शुड लगाते जाओ, जयराम जी की बोलोगे चलो, वही तो मोड चेंज किया करो ना, टेंस को समझ के बनाओ। भाई उसने कहा व्हाई शुड आई बिकम योर बॉस, क्योंकि तुम मेरे नहीं, तुम क्योंकि तुम अंग्रेजी सीख गए हो।
You have learned English. प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा कि नहीं? Because you have learned English. तुमने अंग्रेजी सीख ली है. ठीक, तब क्या करना आपको? होमवर्क आपको क्वेश्चन बनाने हैं. मेक क्वेश्चंस in present indefinite, present continuous, present perfect. This is your homework. At least 50 questions. Present perfect is present continuous or present indefinite. ये बनाइए. okay. See you again on Tuesday. All the best. Have a nice day. Thank you, sir. Same to you. Bye. Thank you. Bye. Be healthy. You too. Thank you. Bye, sir. Bye.